तुम्हें वो मिल गया था तुम्हारा ठीक. All right, let's begin our session that is on a social cultural issues. So there are different things on which these things are based on. Let's start with the introduction. They're saying in this unit we purpose to discuss social problems. The Indian context, there are certain unique features of the Indian society. Indian society even today maintains continuity with her remote past. The social institutions such as uh, one ashram, caste, joint family system, and village communities emerged in the early phase of India's society, which are also responsible for several of the social problems in the modern world. India has been a multi-religious, multi-linguistic, multicultural, and multi-regional society. Since time immemorial, these diversities of Indian society have made significant cultural contributions, and certainly they are a source of strength to the rich cultural heritage of India. But at the same time, they have often posed a number of problems to the social, cultural, and political cohesiveness of Indian society. So they're trying to tell the society in which we are living. We have a very old, we can say that, a social system in which we were following a lot of different things, and because of those cultural practices, we have also started following some of the things which have created social problems, जिसमें आपकी जो caste system हो गया and all, lot of और भी social जो issues हैं वो निकल के इसके कारण बाहर आए हैं. Transformation and social problems. We have discussed the theoretical relationship between social transformation and social problems in the unit one of this course, so this is something different. In this context, we have to keep in mind the following aspects of transformation and their relationship with the social problems: historical and structural. The historical understanding of transformation and its relationship with the social problems may be divided in the following two parts: understanding social problems through different historical phases, like ancient, medieval, and modern periods; social problems, the contemporary period. इसको दो फेसेस में बांट के चल रहे हैं. किस तरह से हम पढ़ सकते हैं? एक वो बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम्स तो हिस्टोरिकल फेसेस है, जिसमें उन्होंने एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न टाइम्स की बात किया. दूसरा उन्होंने कंटेम्पररी पीरियड की बात की है. सोशल प्रॉब्लम्स, हिस्टोरिकल फेसेस. The Indian society, being part of an ancient civilization, has passed through different historical phases. The Vedic period in India sowed the seeds of a civilization. कह रहे हैं कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है दैट इज क्वाइट ओल्ड, और वैदिक बोला जाता है जहां पर हम लोग चार वेदों की बात करते हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद जो हैं इनके ऊपर ही पूरी जो सोसाइटी थी वो भी बेस्ड थी. Characterized by the emergence of sophisticated philosophy, religion, astrology, science, and medicine. So these were the four, Veds, as I told you. It's institutional base centered around one ashram and caste, emphasis on rituals. वन आश्रम मीन्स होते हैं कि हमारी जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट वर्णों में बंटी हुई थी. वर्ण बोलते हैं कास्ट को. वर्ण जैसे बोलते हैं हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. देयर वर फोर बेसिकली वर्ण जिसके अंदर जो हमारी कास्ट सिस्टम थी दैट वाज डिवाइडेड इन द एंशिएंट टाइम्स. उसके बाद साइंस एंड मेडिसिन की वो बात कर रहे हैं जो दूसरे वेद हैं उसके अंदर वो बंटी हुई थी. इट्स इंस्टीट्यूशनल बेस सेंटर्ड अराउंड वन आश्रम एंड कास्ट, emphasis on rituals, higher positions of ritual performers over others, and the sacrifice of animals. The following were the major social problems in the early phase of Indian civilization. वो कह रहे हैं कि जो धार्मिक मेन थे लोग, उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपने अराउंड ही घुमाया, और whatever they were saying people were doing it. And उसमें से एक बड़ी बात यह है कि sacrifice of animals, जिसको ये माना जाता था कि भगवान खुश होंगे, गॉड खुश होगा अगर हम किसी एनिमल की को सैक्रिफाइस करते हैं. तो ये सब जो बातें हैं इसका साइंटिफिकली हम बोलें तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल रहे हैं कि ये धर्म से जुड़ी हुई थी और इस तरह से इसको लोगों से मनवाया जा रहा था या माना जा रहा था.
conflict between the two major social groups, the Aryans and the Dasyus, as mentioned in the Vedic history. तो दो Aryans सबको पता है कि there were two basically जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है. Aryans जो हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग जिसको बोलते हैं रेस माना जाता है, और माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खत्म हुई है ये आर्यंस के अटैक के कारण ही खत्म हुई थी. तो इस तरह से बोल रहे हैं कि अगर हिस्ट्री में हम डीप जाके पढ़ते हैं तो इसमें ये चीजें आती हैं कि इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलता था, इंक्रीजिंग रिजिडिटी ऑफ सोशल हायरार्की, एम्फेसिस ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ रिचुअल्स, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, ये सब चीजें उस टाइम पे ज्यादा फेमस थी. Jainism and Buddhism emerged as a protest against these practices. It is to be noted that during the Vedic and the post-Vedic periods, the social problems of women was quite high. The child marriages were not common in this period. They're saying कि दो जो मत हैं जो इसके बीच में से निकल गए, सेक्ट्स जो है निकल के बीच में है, वो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म. ये कहीं ना कहीं इन जो प्रैक्टिसेस को प्रोटेस्ट करते थे जो पहले से पुरानी चल रही थी. एंड लेकिन उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति थी हम बोल सकते हैं, द कंडीशन दैट वाज अ वुमन, बिकॉज उनके अगेंस्ट उनके आसपास बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं सोशल प्रैक्टिसेस का ताना बाना बुना हुआ था. India's contact with Islam has passed through the phases of conflict, gradual accommodation, increasing synthesis, and revival of communal antagonism. With the advent of the Muslim rule in India, two major trends were visible in the Indian society. उसके बाद धीरे-धीरे हम अगर हिस्ट्री अपनी पढ़ते हैं तो you would see जो ओल्ड रिलीजन है that was called as Hindu religion, उसके बाद धीरे-धीरे मुगल एम्पायर ने, जैसे जो कि मुगल्स वर नॉट बेसिकली इंडियंस, वी नो कि दे हैव इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, और उन्होंने यहाँ पर आकर अपना रूल किया, शासन किया और यहाँ पे बस गए. और उनके बसने के कारण धीरे धीरे इस्लाम था वो इंडिया में भी फैला, और यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे. तो क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इंडियन सोसाइटी पे क्या विजिबल हुआ, उन सब चीजों को बताने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वाज द ट्रेंड ऑफ ग्रोइंग इंसुलरिटी एंड एटीट्यूड ऑफ अवॉइडेंस टुवर्ड्स अदर्स. तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें जो थी जो मुगल्स अपने साथ लेके आए वो हमारी सोसाइटी में भी उसको वी कॉल माना जाने लगा, जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे उस टाइम पे हमारे कंट्री को रूल कर रहे थे. सो दे वर किंग्स, तो उन्होंने जो जो प्रैक्टिस यहाँ पे लागू की, स्टार्ट की, वो हमारी सोसाइटी में उनको माना जाना शुरू हो गया. They strengthened the notion of purity, pollution, and practice of untouchability. The rigid restrictions on the sea voice were imposed on the people in this period. As a consequence, firstly, it reduced the spirit of enterprises and venture among the Indians. Secondly, it minimized contacts of Indians with the outside world. तो कुछ चीजें इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला कि लोग ज्यादा जो थे what do you call सफर जिसको बोलना या व्यापार करना जो दूसरी जगह पर जाके करते थे वो उन्होंने कम कर दिया था कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं, दे शुड नॉट क्रॉस देयर नेशन, और यहीं पर रहकर उनको जो है काम अपना करना चाहिए. During the early phase of invasions and conflicts, the practice of sati had the child marriage developed as a defense mechanism among the Hindus. कह रहे हैं कि जो मुगल्स ने जब अटैक करना शुरू किया, इन्वेजन्स हुई, तो उस टाइम पे एक सोशल मॉल प्रैक्टिस शुरू हुई, जिसको स्टार्ट इसलिए किया गया था उसको कि हिंदू उसको डिफेंस की तरह ले रहे थे. व्हाट वाज दैट? दैट वाज सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिजेस. क्योंकि आपने मूवी अभी देखी होगी, बड़ी एक मूवी इसमें दिखाया भी गया था, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का जो उसमें ड्रामेटिक सीन जो दिखाया गया, उसमें यही बताने की कोशिश की गई कि अलाउद्दीन खिलजी वाज वांटिंग टू मैरी पद्मावती, और पद्मावती ने उस टाइम पे जो सती प्रथा थी उसमें जिसको बोलते हैं इन्वॉल्व होते हुए आत्मदाह कर लिया था अपनी दासियों के साथ. तो इसको वो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मान रहे थे कि कहीं ना कहीं के जो गर्ल्स हैं दे कुड बी प्रोटेक्टेड वन वे, या तो उनकी चाइल्ड मैरिज हो जाए, छोटी उम्र में ही शादी हो जाए, या सेकंड ये थी कि अगर किसी की पति की डेथ हो जाती है तो रेदर देन शी वुड लिव अलोन, तो उसको उसके साथ ही मर जाना चाहिए.
तो ये उस तरह उस टाइम पे जो सिस्टम था ये थोड़ा सा ज्यादा प्रिवेल हो रहा था. ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इमिग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, टर्की एंड अरब कंट्रीज. द रेस्ट ऑफ देम वर लोकल पीपल हु एक्सेप्टेड इस्लाम. मैंने अभी आपको बात की है कि जो लोग थे मुगल थे वो दूसरी कंट्रीज से आए थे, लेकिन मैक्सिमम जो लोग इंडिया के ही थे जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था. Due to contacts with Hinduism and conversions, the Muslims in India were also influenced by caste system. Thus, the social hierarchies were introduced even among the Muslims in India. कह रहे हैं कि अब ये बड़ा अजीब सा सिस्टम बन गया था, क्योंकि शायद इस्लाम में इतना ज्यादा नहीं इस चीज को बताया गया है, कास्ट सिस्टम को या इन सब चीजों को. लेकिन अब जो जो मुस्लिम्स थे वो हिंदू जो इंडिया में रह रहे थे उनके साथ भी कांटेक्ट में थे. तो सिचुएशन यानी ऐसी बनी कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये जो हियरार्कीज थी इनको मानना शुरू कर दिया, और मुस्लिम रिलीजन में भी ये कास्ट सिस्टम जो है वो आना शुरू हो गया, उनके अंदर भी ये सब चीजें माननी शुरू हो गई. The second trend was in form of the evolution of the customs of the Muslim rulers by the elite and section of the upper caste Hindus. This encouraged the adoption of the practice of parda by the upper caste women in North India. अब जो मुस्लिम जो रिलीजन था वहां से जो हिंदू उसमें जो चीज प्रिवेल हुई वो क्या हुई, अपर कास्ट हिंदू में वो हुई पर्दा सिस्टम. कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट की लेडीज होती थी उनमें मुस्लिम से जो चीज उन्होंने उनके अंदर आई दैट वाज पर्दा, कि जैसे मुस्लिम उसमें हिजाब या कुछ इस तरीके से यूज करके जो वुमन है उसको पर्दे में रहने की हिदायत दी जाती है. तो ये चीज जो हिंदू कम्युनिटी थी उनकी जो ऊपर की अपर क्लासेस थी, एलिट क्लासेस थी, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये रिलीजन जो थे आपस में सोशली आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से जो बोल रहे हैं कि उनके जो ट्रेडिशंस थे वो गेटिंग मिक्स्ड अप. In the medieval period, the Bhakti movement researched the humanist elements of the Indian civilization by preaching equality, speaking against rituals, the caste, rigidity, and untouchability. The practices of untouchability, child marriage, sati, infanticide, organized ठगी, cheating, जिसको बोला जा सकता है ठगी का चीटिंग वर्ड है, increased in Indian society, particularly during the declining phase of the Mughal Empire. Even the religious beliefs encouraged the addiction of tobacco, hashish, and opium. कह रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट उस टाइम पे काफी फेमस हुई जिन्होंने इन सब चीजों को अगेंस्ट इनके बात की, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मुगल एम्पायर डाउन हुआ तो और भी चीजें बल्कि हम बोल सकते हैं कि जिसके बीच में ऐड होना शुरू हुई, जैसे दैट वाज इंटॉक्सिकेंट्स का एडिक्शन, जिसमें टबैको हमारी सोसाइटी के अंदर आया. लोगों ने टबैको की, हशीश की, ओपियम की, अफीम जिसको बोल सकते हैं, इन सब चीजों की जो यूजेस थी वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं बढ़ी. By the early part of 19th century, the colonial administration in India was fully established after 1820. It adopted a reformist zeal. There were several social reforms programs to eradicate the practices of sati and thagi, widely prevalent during this period. In the earlier 19th century, the questions related to the social problems of sati, remarriage of widows, spread of modern education, evils of child marriage, and of untouchability were raised by social reforms. 19th century जैसे आगे आई तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे रखे जाने चले गए, क्योंकि यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी एट दैट. जो आज हम जी रहे हैं हमें बहुत फ्रीडम है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ यू कुड इमेजिन दैट द टाइम कंडीशन वाज वेरी बैड, क्योंकि ये सब चीजें फोर्सबली कराई जा रही थी करने के लिए. आज भी आप देखिए बहुत सारी सोशल चीजें हम फोर्सबली करते हैं, शायद हम मानते हो या नहीं मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कई चीजें हमारे जो ट्रेडिशन में चलती आ रही हैं, हमारे रिलीजन में चलती आ रहे हैं, हम लोग उसको फॉलो करना ही पड़ता है. कई बार दिमाग में चीज आती भी है कि नहीं ये कुछ मुझे साइंटिफिकली नहीं ठीक लग रही है या कुछ भी है, लेकिन फिर भी हम उसको फॉलो करते हैं. सिमिलरली दे आर सेइंग कि सोशल प्रॉब्लम्स को भी इसी तरीके से फॉलो किया जाता था, जिसमें सती हो गया, रीमैरिज ऑफ विडोज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उनको नहीं मैरिज करनी दी जाती थी. ठीक है. इवल ऑफ चाइल्ड मैरिज की सबसे बड़ी बात ये होती थी कि बहुत जल्दी जो थी मैरिज कर दी जाती थी लड़कियों की. अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी लोगों के बीच में, छुआछूत जिसको हम बोलते हैं. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी उस टाइम पे, लेकिन इसके साथ साथ रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने अपनी मूवमेंट्स जो है वो भी स्टार्ट कर दी थी. Brahma Samaj by Raja Ram Mohan Roy, Arya Samaj by Swami Dayanand Saraswati, Prarthana Samaj led by Mahadev Govind,
Ranade Ramakrishna Mission inspired by Ramakrishna Paramahansa and led by Swami Vivekanand. So ये कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट्स हैं, बहुत बड़े लोगों का नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिन्होंने इन सोशल रिफॉर्म्स के लिए काफी काम किया. These reform movements oppose the practice of untouchability, sati, infanticide, and propagated in favor of the remarriages of widows and the moral education. Due to the tireless efforts of Raja Ram Mohan Roy, the practice of sati was legally abolished in 1829. राजा राम मोहन का नाम बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ इस चीज को मिलकर इस चीज के ऊपर एक्चुअली लॉ ही बना दिया था. तभी धीरे धीरे जो सती प्रथा थी खत्म हुई. अदरवाइज ये बहुत ज्यादा प्रिवेल थी उस टाइम पे कि लड़कियों को साथ ही में डेथ बेचारों की हो जाती थी क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि ये चीज करनी पड़ेगी. और चाइल्ड मैरिज के कारण ये चीज बड़ी कॉमन होती थी क्योंकि लड़के की उम्र बहुत ज्यादा होती थी, लड़की की उम्र बहुत कम होती थी. जब तक उसकी एज यंग एज में पहुंचती थी तब तक वो बूढ़े होके मर चुके होते थे और यंग एज में ही उनको सती के कारण मरना पड़ता था. The Arya Samaj contributed significantly in weakening the caste identity and reducing the practice of untouchability in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. The activities of the Prathana Samaj were mainly confined to the Bombay Presidency. The Ramakrishna Mission contributed significantly in the field of education and health services. इसके साथ साथ लोगों की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना. हेल्थ के ऊपर तो मैं ये बोलूंगा आपके सामने आज भी एड्स आपके सामने कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े स्टार्स आपके सामने, जैसे कि रिकॉल अक्षय कुमार जी अभी भी ऐड कर रहे हैं कि लोगों की अभी भी सोच कुछ इस तरीके से है कि हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जो है ध्यान इतना नहीं दिया जा रहा है. तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे क्या कंडीशन होगी. अगर हम आज इस वर्ल्ड में अभी भी ऐसी एड्स को देख रहे हैं इसमें इसका मतलब कि क्या कंडीशन उस टाइम पे होगी आप इमेजिन कर सकते हैं. सोशल प्रॉब्लम्स कंटेम्प्रेरी फेज की बात कर रहे हैं. वो एंशियंट मेडिवल की बात कर रहे थे, अब कंटेम्प्रेरी सेकंड फेज में आ गए. In contemporary India, there are several social problems. Though they are called as a social problems, yet in some problems, socio-cultural overtones are more prominent, whereas in some others, the economic and legal overtones are conspicuous. Thus, the contemporary social problems may be classified in the following categories: socio-cultural problems, criminalism, untouchability, population explosion, child abuse, problems of scheduled caste, the scheduled tribes, backward classes, women, alcoholism, drug addiction. ये सारी social cultural problems आपके सामने दिख रही हैं. Economic problems हैं जिसमें poverty है, unemployment है, black money है, legal problems है, crimes है, delinquency है, violence है, terrorism है. ये सारी बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं. ये कहीं ना कहीं सोशो कल्चरल प्रॉब्लम ही है. These classifications are only the purpose of narration. These are closely interrelated with each other. Poverty is an economic as well as social problem. Similarly, criminalism is closely linked to the economic factors. The crime and delinquency are having legal overtones, but they are closely related to the social and economic factors. As they were organized social movements against social problems in the previous phase of the society. Similarly, concerted social and political movements were launched in the contemporary periods against criminalism, casteism, untouchability, illiteracy, alcoholism, and drug addiction. Gandhi is a leader of the national movement. After 1919, devoted a considerable part of his action program for the uplift of Harijans, Adivasis, and women. He tried to reorganize education and village industries. He fought relentlessly against criminalism, untouchability, and alcoholism. In the contemporary period, there are organized movements of women, SC, ST, BC, labor to protect their interests. There are voluntary organizations working against ecological degradation, drug addiction, and child abuse in India. So, contemporary में भी same ही problems चल रही थी जो भी हमने बात की है. लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नेताओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है जिसमें महात्मा गांधी हैं. उन्होंने बड़े टायरलेसली जिसको बोल सकते हैं उन्होंने काम किया है हरिजन्स के लिए, आदिवासी के लिए, वुमेन की कंडीशन के लिए, और काफी उन्होंने इसके ऊपर लिखा है, काफी उन्होंने मूवमेंट्स चलाई हैं. और दैट इज व्हाई दे हैव सेड दैट कि हमें जो है इन सब चीजों से काफी जिसको बोल सकते हैं हद तक निजात मिली और इन चीजों के ऊपर बात हुई. चाहे हम आज भी इसके ऊपर फॉट कर रहे हैं जैसे ड्रग एडिक्शन की हम बात करें, लेकिन फिर भी दे हैव सेड दैट कि इसके कारण काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है. स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल प्रॉब्लम्स. Several attempts have been made to understand Indian social problems in terms of structural transformation. In Indian context, the following three patterns of transformation are visible.
संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये चीजें हैं। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड आस्क यू कि मेरे ख्याल में आज के सेशन के लिए ये टॉपिक जो है काफी है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने 2 फिक्सेस हमने किए हैं तो ज्यादा हैवी हो जाएगा आप लोगों को डोज जो है। So if you have any other question, you can ask me. In the meantime, I would stop your recording. I do have the books on this thing, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड।